how important it is, and does it affect the birth or the future of the child who is coming into the world? It does affect. Is it important for a newborn to have a certain name so that it matches or maybe does a good effect wala numerology? Absolutely, it's very important. तो अभी मेरे को कोई नाम पसंद आया तो मैं उसका पहले न्यूमरोलॉजी रखूँ. What is the power house in a home setup? The northeast of your house and southwest of your house. It's also a way of living ना. We are giving, we are spreading joy. आप ये सब करोगे आपके पास हैप्पीनेस क्यों नहीं आएगी यार? इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है कि ये अंगूठी पहनो, ये माला पहनो, इतना जपो, कुछ नहीं. It's a simple karma. Zodiac sign and compatibility. How crucial it becomes when you have to see the kundalies and you have to watch the compatibility. पहले तो yes, follow the compatibility and don't go on the apps and do that. ये डाल दिया. Okay, 100% compatible. That's rubbish. बिल्ली का रास्ता काटना, how factual it is. Not really. Thank God, मेरे रास्ता बहुत बार ऐसा काट देती है, मैं निकल ही जाती हूँ. मैंने कहा पता नहीं है, प्यार ही कर लो उसको. Welcome back to my happy space of किसी ने बताया नहीं, the secrets to a happy life. We are back with brand new season of किसी ने बताया नहीं. So please welcome creator of the global icon, Dr. Madhu Chopra. Renowned pediatrician and nanotologist Dr. Imran Patel, melodic soul, a C-score, charismatic life coach Jay Madan, eminent oncologist Dr. Sevanti Limain, serene mentor Hansaji Yogendran, trailblazing journalist Nayandeep Rakshit, and many more. One thing that you are very proud of. मैं अपनी फेवरेट हूँ, मुझे ऐसा Praying is an art, and that art you learn only when you surrender. कोई एक ऐसा लाइफ जो मुझे इंस्पायर करता है, मिस्टर संजय दत्त. One secret that you have followed in your own life. माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों का ध्यान रखना होगा. Want you to spill the beans. साबु लगाया, पानी लिया और साबु धो लिया, उसको बात नहीं बोलते. I am very interested. मुझे भी जानना है. माफ करो, मैं डॉक्टर ही हूँ. You think the media industry really likes me? Hi my beautiful people, welcome back to my happy space of किसी ने बताया नहीं, the secret to a happy life. I am so happy and so glad reading your comments and knowing कि आपको हमारा content कितना पसंद आ रहा है. Keep showering your love, keep giving a lot of support and lot of shares and reshares. We enjoy sharing the wisdom, we enjoy sharing experiences of different personalities and we are humbled कि आप लोग इसे इतना पसंद करते हैं. आज का एपिसोड में वी हैव अ वेरी सूदिंग healing personality with us. She is an expert in astrology, numerology, vastu and Reiki healing. Please welcome Dr. Alifia Saeed. Thank you so much for your time. Thank you so much for accepting this invitation because first time in किसी ने बताया नहीं, we will have an astrological point of view for creating happiness and you've been kind enough or I am looking forward for this conversation क्योंकि I have faith in astrology and occult sciences to an extent but not a blind faith but it is a wonderful science that I have gotten to know thoda bahut and it amazes me. Lovely. So please if you can begin with some. Sure. Om Gan Ganpati Namah. Thank you so much for inviting. I'm Alifia, as she's introduced me already, and thank you so much, really. It's really a pleasure to be here with you. Or astrology. It's a blessing actually. Okay. And astrology के जो 9 planets है, अगर इसका connection हम लोग एक child birth से ही कर ले, as in from the fertilization of egg to delivery. हमारे सारे 9 ग्रह जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इस सारे प्रोसेस में. जैसे कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जो होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वीनस की. ओके, इन द फर्स्ट मंथ एंड देन आफ्टर दैट मंगल इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफॉर्म द फर्टिलाइज एग टू अ बॉल. ओके, दैट्स अ मंगल ग्रह. देन द सेकेंड मंथ वंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉल हैज़ हैपेंड, सेकेंड मंथ में जुपिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो बॉल है इसे एक एम्ब्रो में हम शिफ्ट करें, ट्रांसफॉर्म हो. एंड जब एम्ब्रो में ट्रांसफॉर्म होता है तब वो छोटे से हैंड और छोटे से लेग, सिर्फ सबसे पहले ये फॉर्म होता है. और अगर जुपिटर जो है अगर ये एफिलिएटेड है
तो ये डिफॉर्मेशन में होता है। जी जी, आपने सुना होगा ना, बहुत बार डॉक्टर्स कहते हैं सोनोग्राफी में इन द 3rd मंथ दैट इट्स नॉट प्रॉपरली फुली डेवलप्ड और डिफॉर्मेशन है ऑफ ऑफ लिम्स स्पेशली, तो ये जुपिटर के कारक होता है। ओके, सो गॉड फॉरबिड अगर ये हम कुंडली में देख सकते हैं ये मदर की चार्ट में, और अगर ऐसे कुछ दिख रहा होता है तो हम जुपिटर की रेमेडीज़ करवाते हैं उनसे, जैसे कि पीले चीज़ों का दान करवाते हैं। ओके, जैसे कि येलो सरसों जो है पानी में बहा दो, पीली चीज़ें जो है वो मंदिर में दान कर दो, जैसे कि बूंदी के लड्डू, समथिंग लाइक दैट। देन वी कम टू द 3rd मंथ। 3rd मंथ में जो है रिस्पॉन्सिबल जो है वो है सूर्य, सन। 3rd मंथ में जो बच्चे का जो ट्रांसफॉर्म होता है, जो एम्ब्रो का जो ट्रांसफॉर्म होता है, उसके थ्रोट, नेक, माउथ, ओके, ब्लड वेसल्स, देन हार्ट के जो ट्यूब है, बीटिंग है, दैट कम्स इन द 3rd मंथ एंड दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सूर्य। fascinating. देन कम्स द 4th मंथ। 4th मंथ में मून इज रिस्पॉन्सिबल। वो बॉडी के टिश्यूज जो होते हैं बच्चे के उस पर वर्क करता है, एंड टाइनी न्यूरल्स जो होते हैं उस पर वर्क करता है। देन द 5th मंथ कम टू शनि, सैटर्न। सैटर्न क्या करता है? नेल्स, हेयर, बोन्स, बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, देन कम द 6th मंथ। 6th मंथ में मर्क्यूरी इज रिस्पॉन्सिबल। मर्क्यूरी क्या करता है? आपका जो ये जो बाकी फॉर्मेशंस हो गए हैं तो आपका थोड़ा सा बॉडी मास ऐड होगा, थोड़ा सा, वेरी लिटिल। देन टाइनी फिंगर्स, टोज, देन आई मूवमेंट, बेबी मूवमेंट हैपन्स इन दैट मंथ। दैट्स मर्क्यूरी रिस्पॉन्सिबल। द 7th मंथ जो हमारा असेंडेंट लॉर्ड होगा बच्चे का, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इस मंथ में बॉडी फैट एंड ब्रेन डेवलपिंग होगा। द 8th मंथ कम्स टू, अब यहाँ जो रिस्पॉन्सिबल है अगेन इज हमारे मून। मून विल मेक श्योर कि जो लंग्स है वो कम्प्लीटली फॉर्म्ड है, ब्रीदिंग है। इस मंथ में किड को अगर आपने लाइट दिखा दिया, लाइक टमी पे समटाइम यू शो द लाइट, रिस्पॉन्स, उसको टच का रिस्पॉन्स है, उसे हियरिंग आ गई है, the father communicates, he can listen, he can understand everything now, like the touches and all, when you touch the tummy, the child can understand, the fetus can understand that you are अभी मुझे movements हो गए, connection, again moon। 9th month the baby is formed, okay, and अगर इस पीरियड में हम कहते हैं ना ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, अगर वो आ गया बेबी जब 6th मंथ में हो, जैसे सैटर्न का टाइम जब चल रहा है, ओके, 5th मंथ, सॉरी, अगर हमने वो ग्रहण में वो चीज़ें नहीं फॉलो की, वी गेट इनटू कटिंग, चॉपिंग, हम जो कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े जो कहते थे वो राइट कहते थे कि ग्रहण के समय नो कटिंग, चॉपिंग, या तो वो डिपेंड करेगा कौन सा बच्चे को गॉड फॉरबिड डिफेक्ट आएगा, डिपेंडिंग ऑन ग्रहण में आप कौन से मंथ में थे, उस बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। इट इज सो कनेक्टेड। सो आई हैव लिटरली सीन पीपल अगर 5th मंथ में स्पेशली व्हेन द बोन एंड नेल्स एंड हेयर का, आई हैव सीन चिल्ड्रन विद द नेल में ऐसे चॉप्ड, लाइक नेल में प्रॉपर ऐसे कट, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स। यस, इट्स इन माय फैमिली एक्चुअली, माय एल्डर सिस्टर। Because my mother was doing something in the kitchen, she didn't realize it was grahan, because she didn't realize it was grahan, okay, and my sister's finger, her nail is like half, so because it was a 5th month, so one of the things, that's how it works. Amazing. मुझे लगा 9 ग्रह ये जब चार्ट्स बनते हैं तो बर्थ के बाद बनते हैं, but all these planets are affecting all you the months already. Yes, this is fascinating. I'm glad हमारी conversation यहाँ से शुरू हुई, because wow, I mean every planet is affecting every month, is like wow, अच्छा ऐसा भी है, wonderful. I mean like जिस तरीके से both the sciences are coming together and giving an explanation is something, as I mentioned, faith है, not blind faith. You are translating that exactly. blind faith, and you're putting light into it, logic to it, and there is so much of, I hear, relevance to it. It is so important because for me, अगर मैं वो देखूँ, मैंने अपनी लाइफ में, yes, I do take guidance, I hear people out, I hear experts out, but I totally do not give in to जिसमें मुझे खुद faith ना हो, या जिसमें मेरे पास explanation ना हो. So these explanations are so very important. And I mean, from the time of inception to you come into the world. Now let's hear, once the child comes into the world, we now a lot, C-sects are being, they are there, and doctors do recommend C-sections. And I have, मेरा खुद का cesarean हुआ था,
And I have seen my friends, and I was also recommended and told that now, since doctor has recommended C-section for you, would you want to go through a particular time or date? You want to consult an expert? How important it is, and does it affect the birth or the future of the child who is coming into the world? It does affect, and अगर अपॉर्चुनिटी है आपके पास तो प्लीज़ गो फॉर इट. कंसल्ट करिए कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, बर्थ टाइम लीजिए, नक्षत्र लीजिए, एंड उस टाइम पे अगर पॉसिबल है तो डिलीवर करिए. मेरी लाइफ में मैंने आज तक जिनको भी टाइम दिया है ना, किसी का भी बर्थ ऑन टाइम नहीं हुआ है. दिन पर हुआ है, ऑन टाइम नहीं हुआ है, बिकॉज देयर इज अ बिगर डिसाइडर. या तो डॉक्टर अटक गई कहीं, believed in this, कोई yes. या तो कोई वो बेचारे कोई और इमरजेंसी आ गई, डॉक्टर को वहाँ जाना पड़ गया. तो हमेशा दोपहर का टाइम आफ्टरनून में हुआ है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम Evening नेक्स्ट डे हो गया, समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड. या तो फिर इवनिंग का डिसाइड हुआ था और हमें यहाँ मॉर्निंग से ही द थिंग बर्स्टेड एंड दे हैड टू रश हर. तो आज तक आई डोंट थिंक सो मेरे दिए हुए टाइम पे किसी की डिलीवरी हुई है, जस्ट बिकॉज आई एम श्योर गॉड वांट टू टेल मी, गिव मी दिस थिंग. I am a better decider because of course it's आपके so कर्मा. humble of you to even accept that. Yeah, absolutely, and it's a karma. हम कितनी टांग अड़ा लोगे, तो जितनी टांग अड़ा सकते हो उतनी अड़ा लो. उसके बाद जो है वो he will decide, because बच्चा जो है, हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक कर्मा का जो बैलेंस है ना उसको इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. ह्यूमंस हर चीज़ में अपनी टांग अड़ा Interference, हर बहुत चीज़ में. इंटरफेरेंस हर, और नहीं, वो जब चाहेगा तो ही होगा. एंड ऑफ कोर्स व्हाई आई से वेरी इंपॉर्टेंट बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ नक्षत्र. बिकॉज कई बार मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, मतलब एक चौल वाले पर्सन को मैंने एक राइस करते हुए देखा है, बिकॉज बच्चे के आने के बाद. या वो कहते हैं बच्चा अपना किस्मत लेकर आता है. बिल्कुल, वो नक्षत्रों पर. बिकॉज मैं तो कमाने नहीं जाऊंगा ना, तो मुझे अगर ऐशो आराम चाहिए है तो मेरे पेरेंट्स के पास आएगा वो चीज़. सो दैट्स हाउ पेरेंट्स. हम हमेशा कहते हैं ना लड़की हो गई, या लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम, लाइक लड़की हो गई. मतलब लड़कियों को तो हम लक्ष्मी बोलते हैं, हमें इनको दुर्गा भी बोलना चाहिए. वाई? बिकॉज लक्ष्मी तो पैसे भी लेकर आएगी, दुर्गा आपको तकलीफों से बचाएगी. वाओ, शी विल टेक अवे ऑल द प्रॉब्लम एंड ट्रबल्स इन योर लाइफ. लवली. जैसे कि मैं बोलती हूँ, जब भी किसी के घर बच्चा हो, स्पेशली लड़की हो, उसे एक चांदी गिफ्ट करो. इट्स अ वेरी गुड रेमेडी. ओके. अगर नाना का या तो दादा का या तो कोई कोर्ट केस चल रहा है या कुछ है, उस बच्ची का राइट फीट लो और अपने सर पे टच करके निकलो. Believe me, you see where your court case will go. Really? There are a lot of things which remedies can solve, But हमें यही है कि हम अलग ही दौड़ में लगे हैं. और ये सब रेमेडीज ना, इफ़ यू गो टू सी ना, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं. आज मुकेश अंबानी सर जो है, अपनी बेटी को बहुत ही ब्यूटीफुली रिस्पेक्टेड रखा है. Yes, we've seen it. Yeah. है ना? जितना शावर, he doesn't shower on the son. I have seen him always showering on daughter. Ishani, Yes, Isha Ambani, Isha, sorry. exactly. Yeah. So that's what ना, एक अच्छा बिजनेसमैन और एक बड़ा आदमी बनने के लिए सिर्फ घर की लक्ष्मी और घर की देवी को पूजा करनी बहुत ज़रूरी है. रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो ये बहुत ज़रूरी है. व्हेन द सी सेक्शन, अगर इफ़ यू हैव अ थिंग, प्लीज़ गो ऑन एटलीस्ट, कुछ नहीं तो हम दिन तो सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट सिलेक्ट कर सकते हैं. वाओ, दैट्स इंसाइटफुल एक्चुअली. क्योंकि चलो, Ambani is Ambani, of course, definitely. Just one example. Yes, one example. But I have seen it in my family also, or in my friend circle, या फिर दूर acquaintances, जहाँ बेटियों की इज्जत, पालन पोषण में एक खुशी जाहिर की जाती है. वो परिवार आप देखेंगे पलता पुलता ही है हमेशा. Always. And I have seen it in my life too. I am blessed with 2 daughters. Exactly. And the way my family and Abhinav, मतलब वो होता है ना, एक भावना है. इट्स अ वर्शिपिंग वो, एंड देयर इज ऑलवेज अ फीलिंग ऑफ कि बेटियां हैं, देवियां परिवार में हैं. तो हम खुद जब वो देखते हैं ना, तो इट्स ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव फीलिंग अराउंड, एंड इट्स ऑलवेज मतलब परिवार हमेशा खिलता है और फलता फूलता है, और वो मैं हमेशा देखती हूँ. एंड ऑफ कोर्स आई डिड नॉट नो दैट चांदी गिफ्ट करना बेटी को इज लाइक अ रेमेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स. बहुत अच्छी रेमेडी है. आप एक अनदर लेवल, जैसे कई फैमिलीज में मैंने देखा है, लाइक जॉइंट फैमिलीज में, जब बेटियां बच्चों के साथ डिलीवरी करने आ गई है माँ बाप के घर में, तो कभी कभी होता है वो ननंद, एंड दैट थिंग इज देयर नाउ, खर्चा बढ़ जाएगा एंड ऑल दैट. ओ डोंट गो देयर. सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं, एंड इनफैक्ट टेक केयर ऑफ देम. God will really bless you. आपकी जो ना hindrances है ना लाइफ में, ये सारे निकल जाएंगे. For you, I'll tell you now that you have 2 beautiful daughters. इनके फीट किस करके निकला करो, जो भी काम पे निकलते हो. मुझे तो पता भी नहीं होता है, मैं तो फिर भी करती हूँ. Just do it. I do it. I have done it from the day one. And
आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा. You have to do मैं और that. अभिनव तो ये आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ Exactly. आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन इट. देर उनकी तरफ जो खिंचाव है ना, Right. एंड उनकी तरफ जो रेवरेंस है, द रिस्पेक्ट. Right. हालांकि प्यार ज़्यादा होना चाहिए, पर हम हमारी बेटियों के लिए हमारी रिस्पेक्ट बहुत है. वो पैरों को चूमना और वो करना, इट जस्ट कम्स आउट ऑफ Auto, लॉन्गिंगनेस. इट जस्ट कम्स आउट ऑफ कोर्स इसका एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट ये बहुत है. अच्छा benefit मैं है. अभी सुन रही हूँ आपसे, जी. बट हम तो प्यार से मतलब प्यार में आकर कर ही देते हैं. God is making you do it. I can see that. Yeah. Now you have picked up the topic of God. Do you believe that God exists? Yes, of course. There is Almighty who's There is ruling Almighty. everything. Yes. Can you, अपनी experience से can you share maybe Like- one incident? Like I said, हम कितनी भी टांग अड़ाने जाए, लाइक बहुत बार होता है एस्ट्रोलॉजी वाइज. हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली क्या है पता है, हम लोगों को इसे ऐसे लेना चाहिए. एक अंधकार है, वो हेडलाइट है, आपको रोशनी दिखाएगी, आपको एक हाथ पकड़ कर दिशाएं ले दिख रही जाएगी. हाँ, कि इतना बड़ा एक लॉस होने वाला है तो इसमें मत पड़. यू नो, जैसे कि हैप्पीनेस इज वेयर थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. सो हम इसकी पूरी कोशिश, हैप्पीनेस कब, हम दुखी कब होंगे सबसे ज़्यादा, हमारी हेल्थ ख़राब होगी, हमारे रिलेशन हमारे ख़राब होंगे, या हमारा बहुत बड़ा पैसे का लॉस होगा, जहाँ मैं अपना घर वर सब कुछ गिरवी रख दिया हूँ और अब बीवी को मुंह नहीं दिखा सकता. ओके, दैट देन माई हैप्पीनेस. अगर आपको एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाना है, जस्ट एक गाइडेंस लेना है आपको कि मैं ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ. एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा वो आपके लिए. Okay. ठीक है. Okay. तो कई बार लोगों को बताया है ये चीज़ मत करो भाई, इट्स नॉट गोना हेल्प यू. यू नो, यू रियली गोना फॉल इन अ थिंग. एंड बताने के बाद, बोलने के बाद भी वो चीज़ें की है लोगों ने, दे हैव फॉल इन. Repercussions देखे हैं? रेपरकशंस देखे, वेरी बैड रेपरकशंस. मतलब कहाँ से कहाँ आते हुए देखे. ओके, ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने फॉलो किया है और बच गए. मतलब ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, आपको लॉस निकल जाएगा. ठीक है, आपका जो करोड़ों का Intensity कम हो जाएगी intensity शायद. कम हो जाएगी यार. है ना, आप अगर 5-10 करोड़ का लॉस होने वाला है, आप एक 50 लाख 60 लाख पर आ जाओगे. बहुत ज़्यादा होता है. वो वो चीज़ भी काफ़ी फर्क- है, बहुत काफ़ी फर्क है. वो. वाह. आप एस्ट्रोलॉजर भी है, आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं. दोनों में क्या फ़र्क है? ओके, एस्ट्रोलॉजी, जो न्यूमरोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी से डिराइव्ड हुई है. अच्छा जी. ओके, हमारी रेमेडीज अलग है. प्रिडिक्शन जो है वो एस्ट्रोलॉजी से परफेक्ट बैंग ऑन होगी. Okay. ठीक है. न्यूमरोलॉजी से हम क्या देख सकते हैं, पर्सन कैसा है, इसकी क्वालिटीज़ कैसे है, इससे हम डील कैसे करें, हम वो सब देख सकते हैं. अल्फ़ाबेट्स, नाम कैसे रखना है. पहले ज़माने में बाप का अगर नाम आर से स्टार्ट होता था, बेटे का नाम भी आर से रख देते थे. Okay. ठीक है. बट ये मैंने खुद मेरी फैमिली में देखा है. माई ग्रैंडफादर वॉज एन एस्ट्रोलॉजर एंड दैट्स हाउ आई हैव कम इनटू दिस. Oh. सो मेरी जब मासी की शादी हो रही थी, उनका नेम चेंज किया गया था आफ्टर सीइंग द चार्ट ऑफ द गाय ऑफ द माई मौसा. एंड नेम चेंज के बाद टचवुड वो कहाँ थे, और ही इज़ गॉन इन, लाइक मैरिज के बाद बहुत अच्छा टेक ऑफ हो गया, फैक्ट्रीज बन गई उनकी. एक ये समय आया जहाँ पर ही वॉज बेड रिडन एंड माई मासी टुक ओवर द एंटायर कंपनी. Wow. सो देन यू नो, जब बड़े बोलते हैं ना क्या कर रहे हैं, हमें शायद बाद में समझेगा उस चीज़ के लिए. Just with the name change आप बोल जस्ट रहे द हैं? नेम चेंज, इट मैटर्स. Oh. नेम चेंज तो जो शादी के बाद जो नाम चेंज होता है, जी. वो न्यूमरोलॉजी पे डिपेंडेंट होता न्यूमरोलॉजी है. पे डिपेंड होता है, और ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है. हाँ, करेक्ट. ये हम जब कुंडलियां मैच करते हैं, जब अरेंज मैरिज हो रही होती है, विच इज़ वेरी रेयर केस नाउ. Yes, हाँ, yes, अगर आप लव मैरिज के साथ आ जाओगे, बोलोगे कुंडली मैच करोगे, आई विल टेल यू प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी, बिकॉज लव मैरिज ही कर रहे हो, क्यों ही कुंडली मैच करना है, जाओ कर लो. Exactly. जब देखा लड़ोगे, जब लड़ोगे, जब बर्तने बजेंगे, तब हम देख लेंगे रेमेडीज. तब So बता true. दूंगी क्या करना है. But वो the feeling and the emotion when you Right. fall in love, you Yeah. actually don't think about कि क्या No, but तुम्हारी then कुंडली होगी I क्या. still have clients coming in. अच्छा. who will ask me and I was like क्यों ही अपॉइंटमेंट तुम्हारा वेस्ट भी कर रहे हो टाइम, मेरा तो बहुत प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो. ना करो, गेट लॉस्ट. जब लड़ोगे ना तब Then कॉल come to करना, me. तब कॉल करना, तब हम सॉल्व करेंगे. So nice. अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अब क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आपने नाम बताया कि यू कैलकुलेट द वो, सो इज इट इम्पॉर्टेंट for a newborn to have a certain name so that it matches or maybe does a good effect वाला numerology? Absolutely, it's very important. तो अभी मेरे को कोई नाम पसंद आया तो मैं उसका पहले न्यूमरोलॉजी रखूँ? बिल्कुल, आप एक 3-4 पहले तो हमें अक्षर देखना है. अच्छा. हमारे बर्थ चार्ट से Okay. कौन सा अक्षर पे स्टार्ट होना चाहिए. Okay. वन इज दैट. एंड देन हमारा जो सोल नंबर है, जिस दिन हम बर्थ हुआ है हमारा, वो हमारा Okay. सोल नंबर है. Okay. जब हम टोटल करते होता है सोल मिशन. ये जो दो नंबर है, इनके जो बीच वाला जो नंबर होगा हमें वो लेना है. विच वी कैन नॉट टेक अ एनिमी नंबर. Okay. Like we cannot take
अगर वो पर्सन का नंबर है 8 बॉर्न है फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, आई वुड नॉट गिव दैट पर्सन 9, ओके, 9 में as in 9 में नाम नंबर नहीं, हाँ, मैं उसका जो कर्मा नंबर है मैं 9 नहीं लेकर आऊंगी, मैं ठीक है। 26 बॉर्न हूँ, मैं सोच रही हूँ अब मेरा हाँ, नाम मैं उसका नंबर 1 पर नहीं लाऊंगी, बिकॉज सूर्य एंड सैटर्न दे आर एनिमीज। तो इसमें पता है, अगर मैंने गलती से उसका नाम अगर 1 पे सूर्य पे मैं आ गया या ले आई, इसकी लाइफ में हर चीज़ में कन्फ्यूजन रहेगा, मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, हर चीज़ में, मतलब इवन लिटिल स्मॉल थिंग्स में ओवर थिंकिंग, ये मैं करूँ नहीं करूँ, मतलब चढ़ने तक भी मैं ये बोट करूँ या नहीं करूँ, यू नो इट विल ऑलवेज बी अ कन्फ्यूजन बिटवीन, मतलब एक छोटी चाय कॉफ़ी में भी कन्फ्यूजन होगा, अभी क्या पीना चाहिए, चाय पियो कॉफ़ी पियो। मुझे बार बार क्यों लग रहा है विलियम शेक्सपियर ने बोला था व्हाट इज देयर इन द नेम, एक्सक्यूज मी डॉक्टर ओलिविया सेज देयर इज अ लॉट इन द नेम, देयर इज लॉट इन योर नेम, दैट्स योर कर्मा नंबर, योर नेम इज योर कर्मा नंबर, आप वो कर्म के लिए आए हो, आपको कर्म पूरा करना है, इसलिए योर नेम, इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट नाम तो चेंज कर देते हैं, बट एक रेमेडी बोलना भूल जाते हैं कि नाम जो चेंज स्पेलिंग कर दिया है आपने, इसे रोज़ लिखो लाल पेन से एटलीस्ट 24 टाइम्स, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर हो जाए कि अभी आपका स्पेलिंग जो है ये है। अच्छा, ओके, वो क्या बोल देते हैं, जाके आधार कार्ड में चेंज कर लो, पासपोर्ट में चेंज कर लो, अनाउंसमेंट कर दो इतने न्यूज़पेपर पे। बड़े बड़े एक्सपेंसेस आप करवा रहे हो, जरूरत ही नहीं है। हम आधार कार्ड नहीं निकालते नहीं है जब तक हम एयरपोर्ट नहीं जा रहे, कोई गवर्नमेंट काम के लिए नहीं जा रहे, हम पासपोर्ट नहीं निकालते टिल वी आर नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रैवल, वी डोंट इवन बॉदर टू चेंज दैट, जस्ट चेंज ऑन योर इंस्टा आईडी, आपके FB आईडी, आपके सोशल मीडिया पे आप चेंज कर लो और रोज लिखो उस नाम को, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये मेरा This is the नाम new है, identity. दिस इज माय न्यू आइडेंटिटी, मोर देन द पीपल यू शुड नो, दिस इज माय न्यू आइडेंटिटी। Wow, that's a refreshing idea you have given us. Yeah. How do people today relate when they come to you for remedies and solutions, relate astrology to direct happiness in their lives? फर्स्टली डायरेक्ट हैप्पीनेस जो चाहिए हम लोगों को, हाँ, इसके लिए तो जो हैप्पी नहीं है ना टू बिगिन विथ, वही लोग आ रहे हैं जो बहुत दुखी है, astrologically जो बहुत दुखी remedy है, लेने। इसने तो पहले पास्ट लाइफ में है ना हक मारा है लोगों का, Oh, या इसने अपने भाइयों का हक मारा है, अपने फैमिली वालों का हक मारा है, अब किसी के पास से पैसे लिए और नहीं दिए वापस, मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं उसने हक मारा है, ओके, इसलिए some bad उसे karmas. इस लाइफ में जी, इस लाइफ में उसे बहुत प्यार की ज़रूरत है, वन इज़ दैट, ओके, इसलिए हैप्पीनेस नहीं है ना, आपको प्यार चाहिए बहुत। सेकेंडली इन लोगों की जो रेमेडीज जो करनी चाहिए वो ये है कि इन्हें पैसे देने हैं जब भी किसी की शादी हो रही है, किसी का एजुकेशन हो रहा है, सबसे सिंपल रेमेडी बता दूं क्या करना है, कोई भी इम्पोर्टेड फ्रूट होता है ना, ड्रैगन फ्रूट या तो किंग ऑफ फ्रूट मैंगो, या तो एनी लाइक ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स, जो गरीब बच्चों को कभी सिर्फ देखा है खाया नहीं है, ये देते जाओ हर मंथ। वो बच्चे को है ना, वो खाने के बाद एक 8 दिन तक खुशी रहेगी कि उसने वो चीज़ खाई है, जो कि मैं खुद नहीं ले सकता। एग्जैक्टली आप कितनी हैप्पीनेस दे रहे हो पता है, उसकी हैप्पीनेस के रिटर्न में आपको हैप्पीनेस नहीं आएगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। आपको पता है मुकेश अंबानी हर समर्स में उनके सारे जानने वालों के घरों में मैंगोज के बॉक्स भिजवाते हैं, Oh wow. you know, and from where did he learn? From his father, and from father learned, he got it from an astrologer. Oh wow. So these are all astrology remedies. छोटी-छोटी happiness छोटी देना। चीज़ें हैं, हमें देना है, हम भूल जाते हैं। And till today in my family, this is from my grandfather, whenever the first box of mango comes, half is given to the help, and then we're gonna have It's it. also a way of living ना, we are giving, we are spreading joy. आप ये सब करोगे आपके पास हैप्पीनेस क्यों नहीं आएगी यार? Correct. बिल्कुल आएगी। Correct. Start doing it. Wow. Sharing. And it is so simple. Very simple. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है कि ये अंगूठी पहनो, ये माला पहनो, इतना जपो, कुछ नहीं, इट्स अ सिंपल कर्मा। मत करो। How nice it is. I mean, I thought astrology is going to be, oh God, no, all the कठिन से सवाल, कठिन से remedies, but it is so simple. Very simple. Everything available in the house. वो करो। जैसे जो आजकल जो maximum questions जो है, which I am getting from my client, they have a trouble. One of them is addiction to Xbox, addiction to iPad. Okay? ये जब भी होता है ना एडिक्शन, आपका घर जाके नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट देख लो, यहाँ कुछ ब्लू कलर की चीज़ होनी चाहिए जो होगी रेड या तो कॉपर की चीज़। Okay. नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इज डिस्टर्ब, इससे एडिक्शन आता है। और आपको बहुत सिंपल रेमेडी करनी है, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आपके घर में कुछ हल्दी का आइटम रख दो, हल्दी पाउडर रख दो, होल हल्दी का जो पीस आता है, हल्दी की जड़ी वो रख दो। Okay. दैट्स इट। For a beginner, like for me. Yeah.
हाउ डू आई डिटर्मिन नॉर्थ साउथ वेस्ट इन द हाउस? सेंटर ऑफ द हाउस जस्ट स्टैंड. हमारे सारे फोन्स में कंपास है. आईफोन में सबसे बेस्ट कंपास है. सबसे बेस्ट कंपास आईफोन. हाँ, उसे ऑन कर लो, खड़े रह जाओ. आप कहीं पे भी फेस करो कि डायरेक्शंस तो वही रहने वाले. Okay. इधर यू फेस द मेन डोर, इधर फेस यू फेस व्हाटएवर. ओके, जहाँ पे पॉइंट कर रहा है नॉर्थ, बस वो नॉर्थ है. उसका लेफ्ट जो आ गया नॉर्थ वेस्ट है, इट विल शो. तो नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ आपके घर का देख लो. तो मैं सेंटर ऑफ द हाउस सेंटर खड़ी ऑफ द हाउस. मोस्टली पैसेज होता है हमारा सेंटर ऑफ द हाउस. हमेशा लिविंग होता है, पैसेज होता है, 2-3 बेडरूम्स होते हैं. सो सेंटर ऑफ द हाउस और सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, अगर मैं वो बिल्डिंग सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ माय your हाउस, house, your house. Okay, Just okay, stand okay. there and just see. North and northwest disturb होगा. North east में वाईफाई लगा होगा. नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होगा का क्या मतलब है? नॉर्थ वेस्ट में जैसे कि नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ में कलर्स होने चाहिए, ब्लू, वाइट, दीवार के या फिर इवन द आइटम. जैसे अच्छा. यहाँ पर ब्लू कलर है, मे बी दिस इज नॉट द जोन ऑफ वाटर एलिमेंट. हमने डिस्टर्ब कर दिया उसको ब्लू करके. यहाँ पर इससे भी फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. वाओ. अगर आपके बच्चे घड़ी घड़ी फॉल इन हो रहे हैं, ठीक है, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, वो फायर एलिमेंट है वहाँ पर, वो वाटर एलिमेंट है नॉर्थ ईस्ट. वहाँ पर शायद हमारा किचन आ गया है, शायद वहाँ पर हमारा टॉयलेट आ गया है, शायद हमने वहाँ पर रेड कर्टन्स लगा दिए हैं. तो नॉर्थ ईस्ट इज वाटर एलिमेंट, दैट मीन्स कि कुछ पानी से रिलेटेड होना पानी चाहिए. या तो पानी वाले कलर्स हो, वाइट colours हो, हो पानी ब्लू वाले. हो, अच्छा, okay. लैवेंडर हो, ये सब Okay, कलर्स okay, चलेंगे. okay. वहाँ किचन नहीं चलेगा, वहाँ North पे east में. वॉशरूम नहीं चलेगा. इंटरेस्टिंग. They are all न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इट्स ऑल कनेक्टेड. सब एक साथ. सारा एक साथ है. कोई एक घर के लिए कोई एक लकी नंबर, अगर आप इफ यू आर गोइंग टू फाइंड अ फ्लैट फॉर यू, फाइंड अ हाउस फॉर यू, अवॉइड नंबर 4 एंड नंबर 8. अवॉइड अवॉइड मतलब उसका क्या, टोटल या फिर टोटल भी, फ्लोर and नंबर floor या भी. 4 और 8? अगर फ्लोर नहीं अवॉइड कर सकते इट्स स्टिल ओके, बट एटलीस्ट अवॉइड द टोटल और द नंबर 4 एंड नंबर 8. थैंक यू, दैट्स वेरी हेल्पफुल. अगर एस्ट्रोलॉजी और फॉर एग्जांपल किसी कारणवश आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से वास्ता नहीं है या आप वाकिफ़ नहीं हो इस उससे, वन वेरी सिंपल थिंग दैट यू वुड सजेस्ट कि यार एटलीस्ट चेक दिस फॉर योर सेल्फ, योर पीस, या फिर झगड़ा इन द रिलेशनशिप और फैमिली और एनी बिग लॉसेस कैन बी अवॉइडेड. सो अगर इफ आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि एस्ट्रोलॉजी होनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी होनी चाहिए. पहली बात तो ना, मुझे ऐसे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मैं तो फॉलोवर ही नहीं हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं कभी लाइफ में, एंड स्टिल मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है. यू नो, इफ यू गो एंड सी देयर हाउस, नो, इनके घर में सब कुछ एज पर वास्तु रखा होगा, इनका घर ही एज पर वास्तु होगा. बिकॉज ऊपर वाला चाहता है, आप जानते नहीं हो, ऊपर वाला चाहता है कि वो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग रहे. आपको घर ही वो पसंद आएगा जो कंप्लाइंट होगा वास्तु, वो जो जिसे वाइब कहते हैं, अच्छी वाइब कहते हैं. अच्छा, यू नो, सो when you are blessed and when your karmas are good and you are going to be आपने अच्छे कर्मा किए, आपको अच्छी लाइफ नसीब होने वाली है, आप डेस्टाइंड हो इस चीज़ के लिए, आप वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करोगे. मैंने कई बार लोगों को देखा है कुछ कलर्स पहनते हुए, रिंग स्टोन्स में बोल दो या कपड़ों में बोल दो, सिर्फ वाइट कलर पहनते हुए कई लोगों को देखा है. वाइट इज़ अ कलर ऑफ वीनस. वाइट सिर्फ पहनने लग जाओ आप, बहुत आपकी लाइफ में आप वीनस अट्रैक्ट कर रहे हो. Lovely, that's what. accidental वो. Yeah. Not knowing that. Slippers white घर में पहनने लग जाओ. Oh, okay. Venus पैसे रहेंगे आपकी लाइफ में हमेशा. I'll take a note of it. Yes. I will. ये मैं आजमाऊंगी. Please. हम तो White slippers. White slippers. Yes. And you want fame in your life. चप्पल पहन के रहूंगी. साउथ में आपका फोटो लगा दो रेड फ्रेम में, you'll have fame in your life. साउथ. सबसे पहले तो जाकर कंपास खोल के मेरे को नॉर्थ और साउथ देखना है मेरे घर का. वहाँ पर खुद का फोटो लगा दो. साउथ इज अ जोन ऑफ फेम इन योर हाउस. रेड इज द कलर ऑफ दैट जोन. रेड फ्रेम में अगर खुद का फोटो लगाते हो, यू विल गेट फेम इन योर हाउस. और किसी का लैबोरेटरी वहाँ आ गया, टॉयलेट वहाँ आ गया, साउथ में, तो ये लोग पता है कैसे होते हैं, भूखे होते हैं फेम के लिए, कुछ भी करेंगे फेम के लिए. रियली? बट आपने शायद मेंशन किया था कि नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. तो बट अगर कुछ एक घरों में वास्तु कंप्लायंस नहीं हो तो देयर आर जोन्स जहाँ टॉयलेट चलेगा. ईस्ट साउथ ईस्ट में चलेगा, साउथ साउथ वेस्ट में चलेगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चलेगा. देयर आर 3 जोन्स जहाँ चलेगा. और बाकी जो जोन्स हैं वहाँ हर जगह ट्रीटमेंट हो सकता है. सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट वी शुड अवॉइड, कंप्लीटली अवॉइड. घर का व्हाट इज द पावर हाउस इन अ होम सेटअप? मतलब पावर हाउस इन द सेंस
जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन रिस्पेक्ट टू इधर वास्तु, तो वो कौन सा कॉर्नर है? इज इट द किचन और द बेडरूम और द लोकेशन It ऑफ is the बाथरूम? northeast of your house and southwest of your house. दैट इज लाइक अ पावर वो. That's a power. मतलब यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. नॉर्थ ईस्ट इज़ योर माइंड. आपने अगर डिसीजंस रॉन्ग ले लिए लाइफ में तो कहीं लीड नहीं करोगे. फिर कितने भी अच्छे ऑफर आने दो, आपने कितना भी पैसा कमा लिया हो, आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करोगे. एंड वी हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ दोज पीपल हु आर इंटेलिजेंट बिजनेस पीपल. दे हैड द बेस्ट गाइडेंस, स्टिल हैड अ वेरी बैड फॉल. बिकॉज उनके घर में नॉर्थ ईस्ट अगर टॉयलेट आ गया तो आपने मतलब फ्लश कमोटी बिठा लिया है अपने माइंड पर, कितने भी अच्छे ऑफर आने दो. साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट या किचन आ गया आपका, तो आप सबसे पहले तो वॉशरूम अगर टॉयलेट आ गया, वो स्किल्स एंड रिलेशनशिप का जोन है. आपकी स्किल्स विल बी नॉनसेंस. आपको भले ही कितना आता होगा. नो जोन फॉर बाथरूम्स, नो जोन फॉर टॉयलेट्स, नो लैबोरेटरीज. So what in northeast can I place or keep or not keep at all? जिसे अच्छा रहे. ट्राई टू कीप इट कि वहाँ पे विंडोज हो, वहाँ पे डोर हो, नॉर्थ ईस्ट वहाँ से रोशनी आए. बिकॉज वहाँ पे जो देवताज हैं वो अगर खुले हो, अगर लाइट वेट हो, सो दे आर गोना रूल योर लाइफ इन अ बेटर वे. देवताज है. एंड साउथ में असुर है. अगर वहाँ रोशनी आ गई, वहाँ विंडोज आ गए, तो असुर विल आ जाएंगे आपकी लाइफ को. तो साउथ में क्या करें? जैसे कि आप देखते हो ना, एक एग्जांपल देती हूँ मैं असुर से, मुझे याद आया एक बहुत इंटरेस्टिंग है ये. एंड आई रियली वांटेड टू टेल दिस ऑन द पॉड बिकॉज अभी जस्ट ऑन द वे आई जस्ट सॉ समबडी ट्रोलिंग मी वेरी बैडली एंड ट्रोलिंग द एस्ट्रोलॉजर्स. आई टेल यू. सो देयर इज वन एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट वांट टू नेम हिम. ओके, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक क्लिप उठाते हैं. अच्छा. उसका आगे और पीछे का कॉन्टेक्स्ट जो है वो नहीं उठाते. ओके. ठीक है. और फिर वो क्लिप उठाते हैं, उसके बाद अपना एस्ट्रोलॉजी है उसका ज्ञान देते हैं. मतलब ही इज बेसिकली डिफेमिंग ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स. ओके. एंड या कि ये गलत है, इनकी बात क्या सुने या समथिंग लाइक दैट. ओके. इनका नाम जो है ना, मैंने अभी आई जस्ट थॉट इन माई माइंड, दिस पर्सन इज रक्तबिज असुर. रक्तबिज असुर कैसे होते पता है? अगर इनको काटा जाए, इनका जितना ब्लड गिरेगा ना फ्लोर पे, से और निकलेंगे. तो ये जो माँ ने क्या किया था, हाँ माइथोलॉजी में है ना ये. दुर्गा माँ ने क्या किया था पता है? उन्हें खा लिया था पूरा. तो ये जो हमको होता है ना, आई एम श्योर यू आल्सो मस्ट बी ट्रोल्ड समवेयर, बट वी आर ट्रोल्ड समवेयर एवरी डे. इट्स है ना. तो इट इज जस्ट दैट वी शुड नॉट पे अटेंशन टू इट. सो माय टीम कॉल्ड, मैम इसका आंसर दे क्या? आई वाज लाइक डू नॉट. यू नो व्हाई? बिकॉज इसका रिप्लाई देंगे ना हम, ही विल मेक मोर वीडियोज कि इनको तो मुझे अटेंशन मिल रहा है. क्योंकि भी जो हम सारे हैं जो बैठे हैं ना, हम सब एक दूसरे को ना रोस्ट करने बैठे हैं. हम इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि हमको just want to pull each. जबकि I just want to say to that person, you know, astrology is such a good blessing and you are such a senior person. Okay, you shouldn't be doing that. You shouldn't be putting us or anybody down that way. ठीक है? So do not. ये पता है पर क्या कर रहे हैं? ये हमारे जो भी हमारी लाइफ में हमने गुनाह किए होंगे ना, हमारे पाप को धो रहे हैं ये करके. ये राहु का काम कर रहे हैं. और आई वॉन्ट टू टेल दिस सर दैट आपके घर का नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तांडव चल रहा है. वहाँ के जो आठ असुर है ना, जो देवताज एंड असुर है, वो डिस्टर्ब हो गए क्योंकि आपने आपके घर का साउथ वेस्ट बहुत बड़ा कर दिया है अपने आप को इंटेलिजेंट बताने के चक्कर में. तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मून होता है हमारा माइंड, वो भ्रष्ट हो गया है. सो यू कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम समबडीज बिहेवियर कि उनका घर कैसा होगा. बिल्कुल. मैं आपके घर में जाकर ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही होगी और कौन से यू नो इज इट अ रिलेशनशिप, इज इट अ हेल्थ, इज इट यू नो, और इट्स गोना बी अ कैंसर इन द हाउस, और इट्स गोना बी सम ट्रैजिक टू योर सन या तो सम ट्रैजिक टू योर डॉटर. क्या बात कर रहे हैं? वी कैन सी इट. वाओ. हर एक जोन रिस्पॉन्सिबल करता है एक फैमिली मेंबर इन आवर फैमिली. रियली? यस. Interesting, very interesting. Since we are talking about how you sense things, do you think it's a blessing and it comes for you? It hasn't been like a study or a knowledge. It came with you as a blessing, and you know you have that hand of the divine universe, God, जिसे भी आप कहे. It is with you so that you can sense it. So for me, I learned it from my grandfather, astrology, and it's more of energy based. He was blessed with an energy which then chooses a next vessel. So I am the next vessel, and things just come like this.
यस मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं ये बात सुनकर। वाओ। अब जैसे गुड एनर्जीज हैं, यू आर सेइंग दैट यू नो योर ग्रैंडफादर्स सोल एंड एनर्जी फाउंड अनदर वेसल एंड Yes. यू नो उनकी जितनी भी विजडम है, राइट ही इज़ ब्लेस्ड यू विद दैट। सो जैसे पॉजिटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव भी है। बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी आजकल ज़्यादा कॉनोटेशन में नज़र में आती है। बिल्कुल how true this concept of nazar is, and if you can give one or two examples of कि आपको नज़र लगी, किसी को नज़र लगी, आपके समय काम पर नज़र लगी है, हम उसे कैसे जज कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं, एंड मे बी वन रेमेडी फॉर इट। पहले तो नज़र जो है वो रियल है, 108% रियल है, ठीक है। जब भी नज़र लगती है, ओके, फीमेल स्पेशली फीमेल हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल, यस, बॉइल्स, पिंपल, ब्रेकआउट, वजाइनल ड्राइनेस, डिस्चार्ज, एक्सेस, दीज आर नजर लगी होती है तो symptoms अगर देखना है आपको। yes symptoms Oh, wow. okay other than this for men he will have more of a UTI, even for female UTI problem, घड़ी घड़ी UTI problem, even बेचारे बोल रहे हैं ना they must be scouting on the commode if they are using a you know a place, a common washroom, but still they will get UTI because nazar hai. And for male is also more of they are male organs, okay, will be affected. UTI, kidney stones, kidney will be affected for men, and nazar is real. That is there. The simple remedy for it for female, red color की बिंदी जो है वो पहना करो, बाल जो है सनसेट के बाद खुले मत रखो, रेड कलर का रबर बैंड पहनो, ठीक है। फॉर मेल जो हम भगवान के घर में मंदिर में हल्दी कुमकुम रखते हैं, उसे रोज हल्का सा टीका लगा दो, ओके, वो नहीं तो एक केसर भिगोकर रख दीजिए, जो केसर का वाटर है वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि आई नो लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू शो और यू नो गोइंग ऑन वर्क प्लेस पे अलाउड नहीं है, वर्क प्लेस पे अलाउड नहीं है। पता है हम लोग सिंदूर कुमकुम एक फंक्शन करते हैं लेडीज, एंड कुमकुम खेला खेलते हैं हम बंगाल में। सो दिस इज व्हाई डू वी डू दिस। हम जब एक दूसरे को जब सिंदूर लगाते हैं ना, वी आर ब्लेसिंग ईच अदर विथ आवर फीमेल एनर्जी कि यू आर प्रोटेक्टेड। कुमकुम खेला जो होता है वो इसलिए होता है, वी ब्लेस ईच अदर that you are protected for 1 year. मुझे लगा it's just a part and of I am celebration. blessing, no, and because it's done in Devi, in the presence of Devi, it's yeah. her blessing too, that you know we are protecting each other, women energy. एक another चीज़ जो है, जो मैं मोस्टली बहुत घरों में देखती हूँ और बहुत टोकती हूँ, बच्चे लड़के शर्टलेस बैठते हैं, है ना, घूम रहे हैं ऐसे ही। आप ऐसे करके है ना, आप अपने ऑरा को वीक कर रहे हो। इन लोगों को एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगी नेगेटिव, ओके। पेशाचनी निकालने से, हाँ, ऐसे नंगे बैठने से, यू नो, टॉपलेस बैठने से, जो मैन करते हैं काफी, बच्चे भी काफी घूमते हैं ऐसे, गर्मी है कुछ भी है, सो उससे आप अपना ऑरा वीक कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी अट्रैक्शन होगा नेगेटिव चीज़ों का। पेशाचनी हम जो कहते हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगी, ओके। इनफैक्ट इससे आपका मून वीक होगा, ओके। मून वीक से क्या होगा? डिप्रेशन। मून वीक से क्या होगा? एंजाइटी, है ना। आपको क्या करना है, बच्चों को स्पेशली, जो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, यू नो, डिप्रेशन है, सबसे पहली चीज़ उनको कहती हूँ कि इन्हें कुछ नहीं तो पहले ज़माने में वाइट बनियान पहन के बैठते थे, एटलीस्ट वो वाइट पहनो, वो नहीं तो हाफ स्लीव्स टी शर्ट वाइट कलर का पहनो, लैवेंडर कलर पहनो, लाइट ब्लू कलर का पहनो, पर कपड़े पहनो घर पे। डू नॉट रोम लाइक दैट, दैट अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी। वाओ। I mean, I believe in negative and positive energy, but वो इतना अफेक्ट करती है, मतलब ओके। अगर हम बिल्ली का रास्ता काटना, हाउ फैक्चुअल इट इज? ओके, नॉट रियली, नॉट रियली। थैंक गॉड, मेरे रास्ता बहुत बार ऐसा काट देती है, मैं निकल ही जाती हूँ, मैंने कहा पता नहीं है, प्यार ही कर लो उसको, राहु ठीक हो जाएगा। एनिमल्स में भी प्लैनेट्स, बिल्कुल, राहु है कैट, अगर आपका राहु खराब है तो कैट को लाकर पालो, या तो कैट को फीड किया करो। अच्छा, ओके। कई लोगों को देखा है मैंने जिनका राहु बहुत बिगड़ा हुआ है और अपने क्लिनिक के बाहर वो कैट्स को फीड कर रहे हैं, इनको कुछ अफेक्ट नहीं हुआ है राहु का। वाई? बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग द रेमेडी, भगवान आपसे रेमेडी करवा रहा है। जिसका केतु खराब होता है उनको डिप्रेशन के योग होते हैं, केतु मून का जब कॉम्बिनेशन होता है, उनकी बेस्ट रेमेडी आई गिव देम इज हैव अ पेट डॉग एट होम। आप देखोगे बहुत सारे लोगों को दे ऑलरेडी हैव अ डॉग एंड टचवुड दे डोंट हैव डिप्रेशन प्रॉब्लम, इवन दो दे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड केतु।
इट इज़ बिकॉज गॉड ने ऑलरेडी आपसे रेमेडी करवा ली है. Interesting. Yes. So interesting. So, is there any particular वो कहते हैं ना कि I should wear this stone or I should wear gold and silver, जी. metals और gemstones. हाँ, इनका कितना प्रभाव राइट. is on your life and जैसे health हमारे and wealth? घर में वास्तु है, हमारे बॉडी का वास्तु है. Body also has vastu? यस, यू शुड नॉट बी वेयरिंग ब्लैक अराउंड योर नेक. ये जुपिटर होता है हमारा नेक. यहाँ गोल्ड पहनो. डिप्रेशन है, चांदी पहनो. गोल्ड चेन में कब नहीं पहनना है? लाल किताब के हिसाब से अगर आपके वर्ष फल में 6th या 8th हाउस में मंगल आया है तब आप गोल्ड गले में नहीं पहनना चाहिए. ओके, बट अदरवाइज गोल्ड इज द बेस्ट थिंग टू वेयर अराउंड. गोल्ड नहीं पहन सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, येलो धागा पहनिए, बट काला बिल्कुल मत पहनो. रिस्ट में मैंने देखा है बहुत बार आप पहन रहे हो काला धागा. रिस्ट में कभी भी नहीं. इनफैक्ट इफ यू वांट नेम फेम, वेयर गोल्ड ऑन योर रिस्ट. गोल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, कॉपर बैंगल पहनो ऑन योर रिस्ट. Okay. वो पैरों में जो काला धागा होता है? पैरों में काला धागा पहन सकते हो. इनफैक्ट पैरों में हमको गोल्ड नहीं पहनना है. पैर जो है हमारा जो एंकल है वो है शनि. Okay. शनि ब्लैक इज फॉर शनि. तो आप बिल्कुल काला धागा पहनिए. फॉर फीमेल लेफ्ट लेग, फॉर मेल राइट लेग. और उससे क्या फायदा है? इससे डेफिनेटली आपको नज़र से आप बचोगे. और अगर आप जाप कर सकते हो तो 9 टाइम्स 9 नॉट करके आपको गायत्री मंत्र बोलते हुए नॉट करना है 9. ओम एंड भूर्भुवः उसे स्वः जी एंड उसे आप पहन लीजिए आपके लेफ्ट लेग में. फॉर फीमेल एंड फॉर मेल इट्स राइट लेग. And it works? डेफिनेटली इट वर्क्स. मैंने बहुत समय तक क्या बोलते हैं सेट पे ना मुझे लाइक माय स्टाफ एंड पीपल हु यूज्ड टू रियली केयर फॉर मी, आई यूज्ड टू फॉल इल अ लॉट मेनी टाइम्स. तो मुझे बोला गया था आप काला धागा पहनो क्योंकि आपको नज़र लगती है. जी. तो मैंने क्या बोलते हैं काला धागा पहना. Right. फिर मुझे बाद में किसी ने बोला काला धागा अगर आप पहनोगे तो यू आर ड्रैगिंग शनि अलॉन्ग विद यू, डोंट डू दैट. तो आई वाज लाइक अभी मैं करूं या नहीं करूं? तो इतने सारे प्लीज करो. यू नो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एंकल इज योर शनि, फीट इज योर वीनस. इसलिए व्हाइट चप्पल बोला है पहनने के लिए. अच्छा, वो शादियों के बाद जो औरतें बिछुए पहनती है, दैट इज वेरी गुड. दैट इज कनेक्टेड टू योर यूट्रस, दैट वेन. वो यूट्रस को भी कनेक्टेड है, आपके माइंड को भी कनेक्टेड है. आपके माइंड को शांत रखेगी. क्योंकि आपकी जब शादी हुई है, आप एक नए एनवायरनमेंट में हो, यू लूज योर कूल, राइट. मैं मेरे घर में नहीं हूँ ना, तो अभी मुझे तो एडजस्ट होने टाइम लगेगा ना इस घर में. तो इसीलिए वो चांदी के बिछुए पहनाए जाते थे. क्योंकि एक जो वेन है कनेक्टेड टू योर माइंड, यू आर काम, एंड एक जो वेन है इट्स कनेक्टेड टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आप प्रोड्यूस करोगे बच्चे. मतलब हमारे शास्त्रों में श्रृंगार के लिए इट्स एक्सप्लेनेशन दैट एवरी वुमन दैट शी डज द श्रृंगार, इट हैज अ एक्सप्लेनेशन. बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी है, साथ में बहुत सारी रुकावटें भी दी गई थी. अगर आप देखोगे बहुत सारे स्पेशली देवियाँ या तो फिर घरों पहले ज़माने में बहुत हैवी चीज़ें पहनाई जाती थी एंकल्स में. एंड यू नो वाई? ताकि आप ग्राउंडेड रहो, आप घर में रहो. हमारे पूर्वज बहुत ही इंटेलिजेंट रहे हैं, मतलब, और विजडम दे हैव पास्ड ऑन द विजडम. नाउ वी आर डिकोडिंग इट एक्चुअली इफ वी से. यस, बिकॉज मैंने जब ये श्रृंगार के बारे में जब मैं पढ़ती थी, देन आई समहाउ स्टम्बल्ड अपॉन द फैक्ट दैट यू नो इवन क्या बोलते हैं फॉर योर एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट यू शुड बी वेयरिंग इन रिस्पेक्ट टू द स्टोन्स, इन रिस्पेक्ट टू द गोल्ड एंड सिल्वर, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर स्टेट ऑफ mind. Yes, like even with your sindoor, your bindi, जैसे आपने बिंदी बोला कि लाल बिंदी, because you have a pituitary gland here which is releasing all the hormones in the body. Yes, amazing. Zodiac sign and compatibility. How of course आपने बोला तो सही कि you know love marriage में तो we don't watch zodiac signs and compatibility, but how crucial it becomes when you have to see the kundalies and you know you have to watch the compatibility. Is it okay अगर हम 50-50% में join करके निकल जाएं, और is it mandatory कि नहीं love किया है when you come to see the kundalies and zodiacs, please follow the compatibility. पहले तो येस, फॉलो द कंपैटिबिलिटी एंड डोंट गो ऑन द एप्स एंड डू दैट. ये डाल दिया ओके 100% कंपैटिबल, दैट्स रबिश. एप्स एक्यूरेट नहीं है. नो. ओके, सो हाउ डू यू सी अ चार्ट? हाउ आई सी अ चार्ट. ओके, दोनों का चार्ट एक के ऊपर एक रखना होता है एंड देन आई हैव टू सी द कॉम्बिनेशन. अगर मैंने मून उसका है जहाँ पर आप इस लड़की का मून है, आपका केतु आ गया है लड़के का, ठीक है, शादी होते ही लड़की डिप्रेशन में चली जाएगी. ठीक है, सो फिर सारे जो 9 प्लैनेट्स हैं उसका मैं परसेंटेज निकालती हूँ. यहाँ अगर ये मून केतु आ गया तो इट कम 0%. सो आई लिटरली डू इट मैन्युअली
एंड देन आई गिव अ परसेंटेज, आई शो दैट परसेंटेज, ये परसेंटेज निकला है, डिसाइड कर लो आपको करना है नहीं करना है, चॉइस आपकी. चॉइस आपकी. बट फिर एवरी इनकम्पैटिबल जी. मैच हैज अ रेमेडी, नॉट एवरी. या फिर करो ही मत, पढ़ो ही मत उसमें अगर आप जा ही रहे. जैसे कि जस्ट येस्टरडे आई हैड अ चार्ट वेयर द गर्ल वाज, उनका एंगेजमेंट ब्रेक हो गया एंड शी सो वांट्स टू मैरी दिस गाय. ओके, वेयर आई टोल्ड हर दिस गाय विल कम बैक टू यू इन मार्च, बट हाथ जोड़ती हूँ मत करना शादी बिकॉज नहीं चलेगी. एंड शी इज़ लाइक नहीं, आई हैव गिवन 5 years टू इट, मैं करूँगी. मैंने बोला तो फिर ठीक है, कर लो आप फिर. Wow, okay. Yes, that's okay. Then that's your choice. Yeah, then that's your choice. Yeah. I want to quickly now switch the topic. Yes. Can you quickly help us with जैसे होता ना numerology based characteristics of mother. Yes, that's a lovely thing. मतलब 1 से 9 आप बता दो. हाँ जी. And how they are. एक peculiar या quirk कोई बता दो आप. Sure. I'll start with number 3 as my mother is number 3. अच्छा. Okay. Number 3 की अगर माँ मिल जाए ना आपको तो आप बहुत ही नसीब वाले हो, बिकॉज ये नंबर 3 वाले जो होते हैं ना ये बहुत Sorry to cut you down. जी. 3 कैसे, मतलब how are you? Okay. हाँ, वो कैसे करें? Either she is born on number on 3rd, on 12th, on अच्छा, birth date के हिसाब से. 21st. अच्छा, ठीक है. Yes. चलिए, ठीक. 21st और 30th. मैं भी Okay. अपनी मम्मी का सोच रही हूँ. So she becomes number 3. Okay, ठीक है. तो जो नंबर 3 वाले होते हैं ना, इनका बहुत लॉन्ग टर्म विजन होता है. Okay. ठीक है, और बच्चों के लिए तो उनका सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन हो गया. अगर नंबर 3 की माँ ने आपको बोल दिया कि बेटा आज वाइट पहनना है, उसको क्यों क्या ये सब मत पूछो, पहन लो. आई एम टेलिंग यू, वो लोग है ना उनके पास ब्लेसिंग होती है, इंट्यूटिवली ब्लेस्ड होते हैं वो. तो उनका कुछ क्यों क्या मत करो, पहन लो. आई हैव अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ विजया राजे सिंधिया. Okay. रॉयल फैमिली. हाँ. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, सारे रॉयल फैमिली को रिक्वेस्ट हुई थी कि पैसे दिए, पैसे चाहिए हमें इंडिया चलाने के लिए, हमारी कंट्री चलाने के लिए. सिंधिया फैमिली 74 करोड़ जमा हुए थे, इसमें से 54 करोड़ वर गिवन बाय सिंधिया फैमिली. ओके. सिंधिया फैमिली वाज द वन जिनका मैं नाम ले रही हूँ आपको. विजया जी इज़ द वन जिन्होंने बीजेपी को फंडिंग की थी गांधी के अगेंस्ट. अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने खड़ा किया था. ओके, शी वॉज द CM ऑफ राजस्थान. शी नंबर 3. उनकी 3rd जनरेशन जो उनकी जो ग्रैंड डॉटर है इज ऑल्सो अ CM. सो ये होता है नंबर 3 का विजन. ओके, एंड सुषमा जी जो है शी इज नंबर 3. जीजा माता इज नंबर 3. सो दे हैव अ लॉन्ग विजन. जगत माताज. दे हैव अ वेरी लॉन्ग विजन. ओके, नंबर 4, ये जो मदर्स होते हैं ना, 4 इज द नंबर ऑफ राहु. ओके, इनको है ना सपने में समझ आ जाएगा, या तो इनको है ना एक वो मिल जाएगा कि ये ऐसा होने वाला है. Towards their child. Towards their child. Yes. They will have that thing towards their child. या तो ड्रीम आ जाएगा, या तो इनको एक फ्लैश आ जाएगा that you know it's towards your child. मतलब कुछ होगा. एक नंबर 4 का सिर्फ ये होता है, इनके जो बच्चे होते हैं ना, they are very prone to abuse. So they have to be very very careful. Because बच्चे की गलती थोड़ी ना है. नहीं, बच्चे की गलती नहीं है. Because माँ का नंबर 4 है. 4 जो है वो कार्मिक नंबर है. ओके, आपके जो पीछे जो डेप्थ है ना, उसका कार्मिक नंबर. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और इनके घर में मैंने हमेशा देखा है, इनका साउथ वेस्ट में या तो लीकेज होगा, या तो सिलन होगा, और वेस्ट में इनकी ग्रीनरी होगी. जब भी आपके साउथ वेस्ट में ये दोनों, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट डिस्टर्ब है, आपके घर में आपका बच्चा अब्यूज़ होगा, या तो मेड से होगा या तो बाहर होगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो माँ का नंबर बच्चे को इतना अफेक्ट करता है. ओके, बट दे आर राहु है, पहले से बता देगा, वो प्रोटेक्ट कर लेगी अपने बच्चे को. मोस्ट ऑफ द टाइम शील प्रोटेक्ट. शी इज ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव. शील प्रोटेक्ट. ओके, सो डेफिनेटली वो करेंगे. एकता कपूर इज नंबर 4. ओह यस. ओह वाह. ओके. नंबर 5, ये अगर माँ मिल गई आपको, उसकी तो चरण धो के पी लो. वाई. नंबर 5 होता है बिजनेस का नंबर. ये आपको पेट में ही सीख जाओगे बिजनेस कैसे करना है. नंबर 5 वाणी का नंबर होता है. ये आपको सिखा देगी, आप पेट से सीख कर आओगे, आपको अच्छे से तमीज से बात करनी है. Wow. She will teach you already. Okay. So number 5 is a very very good mother. Okay. सिर्फ नंबर 5 मदर्स को ये केयरफुल रखना है वो अपनी वाणी से क्या बोल रहे हैं. डोंट कॉल योर चिल्ड्रन. मेरे एक क्लाइंट थे, वो अपने बच्चे को डेविल बुलाते थे मस्ती में. हाँ, but and he started, she came with the thing of child having troubling.
उस वो बच्चे ने उठाकर कुछ 20 किलो का सामान जो है गोल्ड बेच दिया. दे आर पॉलिटिशियंस फॉर अ गर्लफ्रेंड. Wow, lucky girlfriend. Not that lucky. फादर ने रिकवर कर लिया 10 लाख का सामान, बट 10 जा चुका था ऑलरेडी बाय द टाइम दे गॉट टू नो. ओके, आई जस्ट टोल्ड हर, एंड वो मेरे सामने उन्होंने उसको एक बार डेविल बुला दिया. मैं सच ही बोलती हूँ इसके बारे में कि डेविल है. आई वाज लाइक मैम, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू करेक्ट इज डेविल बुलाना बंद करो, इसको एंजल बुलाने लगो, इसको माई बेबी, माई शोना, जो भी अच्छा जो चीज़ है ना उसको ब्लेस करो. एंड टचवुड द चाइल्ड इज डूइंग वंडरफुली वेल. मैं ये कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी को है ना, एक रेमेडी करके मत जज करो कि मेरे से हो जाने वाला, जादू टोना नहीं है. इसको एक 2-3 साल दो And believe it. 2-3 साल दो रेमेडी इसको. कोई रेमेडी नहीं है जो आपने ये रेमेडी कर ली और हो गया Instant. ठीक है. गिव इट सम टाइम एंड इट विल शो यू द रिजल्ट्स डेफिनेटली. एंड देयर वाज रिजल्ट. दीपिका पादुकोण इज नंबर 5. ओके, तरला दलाल इज नंबर 5. So many books. So it's a small clip for Dua when she absolutely she understands क्या है. My mother is going to be like वाली रहने वाली है वो. Wow. Yeah, we've seen Deepika conducting herself. She's amazing. Very well. Yeah. नंबर 6 वाले जो लोग हैं, अगर ये आपको माँ मिल जाए तो मतलब आपने पिछले जन्म में ना बहुत लोग को खुश किया है, हैप्पीनेस दी है. Okay. आलिया भट्ट इज नंबर 6. Oh wow. So this is for Raha. After 10 years you can watch this. Yes. So ये जो मदर्स है ये of course बहुत गिवर रहेगी. एक्सट्रीमली एवरी मदर इज अ गिवर ऑफ कोर्स. शी विल बी एक्सट्रीमली गिवर. ये सिर्फ ये होता है नंबर 6 की मदर्स में, इनको मैंने हस्बैंड्स का सुख नहीं देखा है ज़्यादा. हाँ, सनम बेवफाई होता है मोस्टली. So let's not connect there. No. Yeah. I just made it like number 6 जो होते हैं सनम बेवफा होते हैं, पर फिर भी उस consequences में भी वो अपने बच्चे को बेस्ट देती है. Okay. So yeah, number 6 mothers are मतलब वो फील नहीं होने देगी बेटे बच्चों को, या उन पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने देगी, उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो. ओके. एंड नंबर 6 जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, लाइक नंबर 2. ओके, दे आर ऑलवेज गिवर. इनको मिलता नहीं है उतना रिटर्न में, तब भी वो अपने बच्चों पे वो असर नहीं आने देती. यू नो, दो माई जार इज एम्प्टी, उसका इफेक्ट ये नहीं होगा कि मैं आपसे चिड़चिड़ करूंगी, आप पे फ्रस्ट्रेशन निकालूंगी, आपको मारूंगी, कूटूंगी. आई हैव नेवर सीन अ नंबर 6 रेजिंग हैंड ऑन देयर चिल्ड्रन. नंबर 7 अगर आपकी मदर है, यू हैव अ गॉड इन द हाउस. ओके. नंबर 7 वाले जो होते हैं इनको हस्बैंड से अगेन सुख नहीं होता. ओके. घर वालों से सुख नहीं होता. ये बहुत है ना, हर टाइम अपनी लाइफ में बैलेंस कर रही होती है. एंड एक्चुअली अभी बोलते वक्त आई कैन जस्ट मेरे क्लाइंट्स मुझे याद आ रहे हैं, कौन है जो बेचारे दे आर डूइंग दैट. दे आर वंडरफुली मैनेजिंग. दे आर बीइंग अ ब्रिज बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द फादर, बीइंग अ ब्रिज बिटवीन द ग्रैंड पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन. दे आर बीइंग जस्ट अ ब्रिज. Okay. So that's what number 7 are. And Hema Malini ma'am is number 7. Okay. Number 8. इधान जीवा 10 साल के बाद आप ये सुनना प्लीज. number 8, number 12. Okay, fine, lovely. नंबर 8 मदर्स जो होते हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में, इनका लाइफ में कितना भी दिख जाए कि ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, पर ये आसानी से नहीं आया है. इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है. इट हैज़ नॉट कम लाइक अ पीस ऑफ एक केक, या तो बोलते हैं ना एक केक वॉक की तरह इसको नहीं आया है. मदर एंड फादर बोथ, ये दोनों ने बहुत एफर्ट्स डाली है. हर टाइम पे ये टूटे हैं, फिर बोलते हैं ना फिर उभरे हैं. दे आर नंबर 8. ओके. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये अपने बच्चों को बहुत मजबूत कर पाते हैं. ओके. मेनका गांधी नंबर 8. शी ट्राइड हर बेस्ट टू गिव द सन पोजिशन. ओके, कि कहीं तो जगह एक पोजिशन उसको मिल जाए. So yeah, that is number 8. Comes with a struggle, knows the struggle, okay, and will be able to give it. And very, very nicely they will be able to explain their children कि क्या था, Number 9. ये जो mothers होते हैं, ये होते हैं fighter. Oh, okay. Fighter. इनके बच्चे बुली होंगे, ये फाइट करने पहुंच जाएंगे. ओके. और इनके बच्चे होते भी है बुलीड, बिकॉज जितने ही मदर स्ट्रांग होते हैं ना, इनके बच्चे उतने ही काम रहते हैं. क्योंकि वो ऑलरेडी इतना घर में देख चुके होते हैं कि ये ऑलरेडी रोज चलता है हमारे घर में, तो उतने बेचारे काम होते हैं, उतने बुलीड होते हैं बाहर, तो ये पहुंच जाएगी. इसलिए कि सुष्मिता सेन मदर इज अ नंबर 9. She applied for it. She applied for the Miss India thing, and she was about to withdraw because gloves बनाएंगे कैसे, gown बनाएंगे कैसे, but mother was like कैसे नहीं बनाएंगे. They made from socks. They made the gloves. Okay. How can we forget Sonia Gandhi, number 9? Yeah. Still fighting कि मेरा बेटा politician है.
या बन सकता है, सॉरी। नंबर 9 है वो। Yeah. कमिंग टू नंबर 1, इनको जज करना बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत सख्त दिखेंगे, ओके, ऐश्वर्या राय, बट ब्यूटिफुल मदर। इनको पता है क्या, लोग ऐसे वो भी करेंगे, टैग भी करेंगे बहुत सारे नंबर 1 को कि ये बहुत क्रूअल है, ये बहुत एरोगेंट है, ये अपने बच्चों को दूर भी भेज देंगे पढ़ाई के लिए, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बिकॉज उसका अच्छा हो रहा है। सो नॉट बी बॉदर्ड, बहुत बॉदर्ड है इनसाइड, ओके, मदर है, बट उसके अच्छे के लिए शी कैन बिकम क्रूअल फॉर द वर्ल्ड, बट नॉट, शी इज नॉट एक्चुअली क्रूअल। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 तो हम इमोशनल, फुलफिल्ड विद इमोशंस। Okay. नंबर 2 मदर्स जो है, इनफैक्ट नंबर 2 मदर्स जो है, इनका जो, इनके बच्चों का जो मून है, जो माइंड है, वो बेस्ड करेगा इनका रिलेशनशिप, इनके बच्चे इनको कितना अच्छे से रख रहे हैं। Okay. या अगर आप अपने बच्चे, अगर आपकी मदर नंबर 2 है, यू मेक श्योर योर रिलेशनशिप विथ योर मदर इज एक्सीलेंट, ब्यूटिफुल, वर्क ऑन इट। बिकॉज अगर आपका रिलेशनशिप उनसे अच्छा नहीं है, आपका जो मून है, आप कितने भी रेमेडीज कर लो, आप कितने भी चांदी पहन लो, आप पूरे चांदी में डिप्ट हो जाओ, शिवलिंग पे जाके जितना भी अभिषेक करना है मिल्क का कर लो, आपका मून ठीक नहीं होगा अगर आपका रिलेशनशिप विथ योर मदर इज नॉट ओके। Okay. या बिकॉज नंबर 2 का एक अनदर वो है, मतलब नंबर 2 की जो मदर्स होती है, शी कैन सेल हर सोल ऑफ ऑल्सो टू अ डेविल फॉर हर चिल्ड्रन। Just for a child. Wow. यस, शी कैन डू दैट, नंबर 2 वुमेन मदर्स। और जब भी नंबर 2 की जब भी कमी होती है, यू ऑलवेज चेस फॉर अ वुमेन इन योर लाइफ जो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अर्जुन कपूर, मदर 2, नंबर 2 वॉज मिसिंग, तो ही ऑलवेज चेस्ड फॉर, ही ऑलवेज गो फॉर अ पर्सन जहाँ पे मदर की जो कमी है वो पूरी हो। मिस्टर फडनिस अपने इनविटेशन कार्ड पे, ओके, इन्होंने इस बार अपनी माँ का नाम लिखा है, देवेंद्र सरिता। Oh. यस, आपको क्या लगता है वो ऐसे ही आ गया? आपको नहीं लगता ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला होगा माँ का नाम लेकर आओ? That's insightful. That's insightful. But आपने जितनी भी descriptions for mothers from 1 to 9 दी है, Right. the beauty, strength and courage of a mother Yeah. is there. Yeah. मतलब नंबर के हिसाब से माँ का प्यार और माँ के गुण बिल्कुल। कैरेक्टराइज हो ही नहीं सकते हैं। No, can't be. मतलब माँ ही है, बिल्कुल। अलग अलग भाव में और अलग अलग यूनिक उसमें होंगे, बट बिल्कुल। इट्स सो, मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग कॉन्वर्सेशन और टॉपिक ऑफ डिस्कशन था ये, एंड it is actually very insightful, and to see it with examples and correlate it with example, it becomes easier for understanding. So kudos to you also to make these concepts and these information such, you know, in a very simplified way. इसमें कोई complexity नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, हमारी audience समझ सकती है, and it is, वो कहते हैं ना कि चीज़ें जितनी simplify तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतना बेटर कनेक्शन हम लेकर आ सकते हैं। टॉकिंग ऑफ कनेक्शन, डू यू बिलीव दैट इन अ फैमिली एस्ट्रोलॉजी में या फिर न्यूमरोलॉजी में जो कनेक्शन है, दैट अफेक्ट्स रिलेशनशिप्स एज वेल? या इट डज, एस्ट्रोलॉजी वाइज भी और वास्तु वाइज भी। आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, आपके घर में अगर वास्तु डिस्टर्ब है तो वो डिस्टर्ब होने के पूरे योग है। आपका पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, चाइल्ड का बिहेवियर कैसा रहेगा, ये सब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बेस है। बिहेवियर एज वेल? बिहेवियर एज वेल, जैसे कि चाइल्ड, हम कहते हैं ना मून कैसे इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के बिहेवियर को। मून अगर बच्चे का 4th हाउस में, या तो हमारे कोई अडल्ट का भी 4th हाउस में, जो बच्चा रहेगा वो ओवर थिंकर रहेगा, ओके, बहुत ओवर थिंकिंग करेगा, बहुत इमोशनल रहेगा। मून अगर 6th हाउस में आ गया, ओके, ये हमेशा कंफ्यूज रहेगा, ओके, एंड रॉन्ग डिसीजन लेगा कंफ्यूजन की वजह से। इसलिए आई ऑलवेज टेल पीपल हु हैव देयर मून इन द 6th हाउस, शेयर मार्केट मत करना, आप लॉस ही करके आओगे। लास्ट मिनट में ना कॉल ले लोगे कि मुझसे नहीं होना है और लॉस दीजिए, एंड दे विल डू अ लॉस। सो डोंट गो फॉर अ शेयर मार्केट बिकॉज यू गाइज आर कंफ्यूज कैरेक्टर्स। ओके, ओके, नंबर 8 वाले जो लोग होते हैं, अगर मून अगर आपके 8वें घर में है, आप लोग क्राई बेबी होते हो, हर चीज़ में रोगे, ठीक है। इनकी मदर्स को बहुत स्ट्रगल हुआ होगा लाइफ में, ओके। अगर मून आपका 12th हाउस में है, ठीक है, आपको कैसा होगा ना, अपने पास जैसे कि सिबलिंग है, आपके पास जो चीज़ है ना आपको वो नहीं पसंद होगी जो दूसरे के पास है, जो उसके पास है ना, भले ही ये 100 रुपए की चीज़ है आपके पास, उसके पास बेचारे के पास 10 रुपए वाली चीज़ है, बट यू विल थिंक अरे यार वो ज़्यादा बेटर है,
ठीक है, हमेशा दूसरे की चीज़ ज़्यादा पसंद होगी आपको. सो दिस इज हाउ योर मून, योर माइंड, योर थिंकिंग पैटर्न विल बी. वास्तु वाइज इट इज गोना बी अगेन, अगर आपके घर का साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, लाइक वी वर टॉकिंग, ओके, उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है. और उसे ठीक करने के चक्कर में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है साउथ वेस्ट में सब कुछ करके रखा है. पीला छत, पीला वॉल, पीली ज़मीन. इतना ओवरडू मत करो, ठीक है. येलो लाने अगर आपको कहा है, इतना ओवरडू मत करो. इससे आपने क्या कर दिया, आपने ये देवताज और असुर को ठीक करने के चक्कर में जो ऑपोजिट है नॉर्थ वेस्ट, उसे डिस्टर्ब कर दिया, वहाँ पूरा जोर डाल दिया, तो इम्बैलेंस हो गया ना. सो डेफिनेटली वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाइक फ्लैट नंबर आप कौन से रह रहे हो, फ्लोर नंबर कैसे कौन से पे रह रहे हो. अंबानी सर, मुकेश अंबानी सर lives on a 27th floor. Okay. His soul mission number comes to number 9. His car numbers are 9. Oh wow. So this is not accidental. It's not coincidence that No, it's not. he's following a certain way. No, it's not. Oh wow. It is not a coincidence. That's the belief. Wow, amazing. 5 elements hai. Yep. Our body is made up of those 5 elements. Can you please give us quick ek remedy to balance or to elevate these 5 elements in ourselves, in our lives, however? So whenever you have in your house rather, okay, northeast disturb है, that is a water element. Okay. ठीक है. यहाँ अगर हम लोगों को वो तो कहते हैं ना शांति चाहिए है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पर रिस्पॉन्सिबल है हमारी अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए. Okay. यहाँ हमें हो सके तो कुछ वाटर एलिमेंट रखना है. ठीक है. एक वाटर फाउंटेन रख दो, वो जो होता है ना इलेक्ट्रिक बैम्बू वाला. पानी में रख के छोड़ दें वैसा. एक स्टैग्नेंट वाटर मत रखो, फ्लोइंग वाटर. फ्लोइंग वाटर रखो. ओके ओके. नहीं, वो अगर वो भी नहीं कर सकते, वाटरफॉल की एक पिक्चर लगा दो, अच्छा. Oh, है ना, एक वो रख दो, दैट्स फाइन. ओके, जिससे हमारा वाटर एलिमेंट जो है वो बैलेंस रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एयर एलिमेंट. ओके, दैट इज ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट इज योर एयर एलिमेंट. यहाँ बैलेंस करने के लिए हम लोग को मेक श्योर करना है हम यहाँ पर लाल रंग बहुत नहीं लेकर आए. Okay. हम यहाँ पर कॉपर नहीं ज़्यादा लेकर आए. हम यहाँ पर ज़्यादा करके हम ग्रीन्स लाए यहाँ पर, या तो ब्राउन शेड्स लाए. ठीक है. कुछ नहीं है तो एक सूर्य देव रख दीजिए ईस्ट में, आपका सोशल कनेक्शन अच्छा हो जाएगा. वो नहीं है तो एक किंग ऑफ फ्रूट, मैंगो का एक पिक्चर रख दो वहाँ पे. एक फ्रूट बास्केट का पिक्चर रख दो वहाँ. हमारी कॉन्वर्सेशन में मैंगो बड़ा वो हुआ है. किंग ऑफ फ्रूट है. wow. आ रहा है यार, आई एम वेटिंग फॉर इट. Really? ऑल आर वेटिंग फॉर इट. I'm finding that personal affinity towards mango. Yeah, absolutely. So एक mango, that's a remedy, you know. So you know what? Why this remedy? Because there are people who can't afford even a Surya Dev, right? So for them, I just tell them एक mango का picture लगा दो उधर, and it will work for you. How sweet. Yeah, that will work. अपने बच्चे को बोल दो एक mango draw कर दो और वहाँ पर picture paste कर दो. It will work for you. Okay? इससे हमारा हो गया, हमारा ईस्ट जो है हमारा एयर एलिमेंट है, वो जो है वो बैलेंस्ड है. एयर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप के लिए भी. अच्छा. नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल जोन फॉर कम्युनिकेशन, फॉर रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड. ये दोनों जोन में ना टॉयलेट्स होना चाहिए, ना यहाँ पर कोई स्टोरेज होना चाहिए. ओके, ये दोनों चीज़ें नहीं होना चाहिए. ओके, देन आते हैं, और अगर है टॉयलेट्स, ट्रीट देम. वी कैन ट्रीट इट विदाउट ब्रेकिंग, वी कैन ट्रीट देम. फिर आते हैं हम फायर एलिमेंट पे. अग्नि. नेक्स्ट ईयर इज अ फायर ईयर. 2025 is a 9 number here. It's a number of a fire. Okay. फायर ईयर है. सबसे अच्छी रेमेडी हम सबके लिए नेक्स्ट ईयर, ओके, इज गोना बी फीड पीपल. हम भूख है ना जो, उसकी आग बुझाएंगे. आप वो करो, आपके जो भी हिंड्रेंस है ना कम हो जाएगी. आपके कलीग्स को फीड करो, अपने स्टाफ को फीड करो, यू नो, फीड करो, लोगों को फीड करो. बच्चों के घर मतलब टिफिन एक्स्ट्रा भेज दो, जो मेरे घर से एवरीडे एक्स्ट्रा जाता है. अरे वाह. यस. तो या बिकॉज इसके पीछे भी रीज़न है, हम जंक भेजते हैं ज़्यादा इसीलिए. सो एनीवेज, तो वो भेज दो. ठीक है. आपका फायर एलिमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा रहेगा. फायर एलिमेंट अगर इम्बैलेंस हो ना, उस घर में झगड़े बहुत होते हैं. अच्छा. ओके. या छोटी छोटी बात पे आप देखोगे ना, बच्चे झगड़ रहे हैं एक दूसरे पे, या जस्ट स्नैपिंग एट ईच अदर, बिकॉज आपका फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है घर का.
ठीक है, और यू ऑल्सो लूजिंग योर कूल बहुत जल्दी, आपका खुद का भी फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है. ओके, देन आते हैं हम फायर एलिमेंट के बाद आते हैं अर्थ एलिमेंट पे, जो है हमारा साउथ वेस्ट, जो हमारा रिलेशनशिप एंड स्किल का है. यहाँ पे अगर जो होता है ना, बहुत बार कंप्लेन आती है कि हमारे बच्चे बाहर का ही खाना खाते हैं. अच्छा. हम घर का ऑर्डर खाना नहीं खाते. इसका वन ऑफ द रीजन इज साउथ वेस्ट में आपका किचन है. जब भी साउथ वेस्ट में किचन होगा ना, बच्चों मतलब उस घर के खाने में स्वाद नहीं होगा. और एक्सेस में हमेशा बनेगा. आप हमेशा है ना दाल मतलब 10 लोगों की बना दोगे इंस्टेड ऑफ मेकिंग फॉर 2 people. ओके. बहुत वेस्टेज होगा उस घर में, बिकॉज किचन इज इन द रॉन्ग जोन. साउथ वेस्ट में वेस्टेज ऑफ फूड होगा अगर आप, तो इसलिए या तो टेस्ट नहीं होगा तो बाहर का खाना ऑर्डर होगा. तो साउथ वेस्ट में अगर डिस्टर्ब है तो वहाँ कुछ येलो चीज़ ले आओ, येलो वाज ले आओ, येलो पेंट कर दो एक वॉल को, येलो फ्लावर, समथिंग ऑफ येलो एलिमेंट ले आओ. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं हमारे स्पेस एलिमेंट में, दैट इज वेस्ट. वेस्ट जब भी डिस्टर्ब होगा ना, उस घर में कपल्स की लड़ाई हमेशा रहेगी. दोनों भी डिफरेंट पेज पे हो गए, दे विल नॉट अग्री विद ईच अदर. वेस्ट डिस्टर्ब होगा तो डिप्रेशन आता है. वेस्ट में ग्रीन कलर इज अ बिग नो. यस, डिप्रेशन विल कम. वेस्ट में हो सके तो बालकनी नहीं होनी चाहिए. सुशांत सिंह के घर में वेस्ट में बालकनी थी. हाँ, उनका नॉर्थ ईस्ट क्लोज था, साउथ में एंट्री थी. दिस वॉज अ एंटी हाउस टू बी इन. इट्स अ डिप्रेशन यहाँ से आएगा. यू कैन नॉट हैव अ बालकनी. इफ़ यू आर हैविंग अ बालकनी दे, नॉर्थ ईस्ट में यू नीड टू हैव अ बालकनी. और अगर नहीं कर सकते, क्रिएट. हाउ विल यू क्रिएट? पुट अ मिरर इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. वाटर एलिमेंट हम ले आए वहाँ पर. ओके. नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा सपोर्ट का जोन. ओके. यहाँ सपोर्ट लाने के लिए, हमारी लाइफ में सपोर्ट लाने के लिए एक वर्ल्ड ग्लोब रख दो. आपको हर जगह से सपोर्ट आएगा अपनी लाइफ में. वाओ डॉक्टर, यू आर अमेजिंग. आई मीन लाइक वो बोलते हैं ना कि you've given छोटा छोटा hints and solution to almost all the problems and all. वो होता है ना कि इन सब चीज़ों से ना हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त जूझता है. ऐसा नहीं है दैट वी आर प्रॉब्लम फ्री. चाहे वो रिलेशनशिप हो, मेंटल हेल्थ हो, करियर हो, पैसा हो, खुद का हेल्थ हो, आई थिंक ऑल ऑफ अस, बच्चों का हेल्थ हो, फैमिली डिस्प्यूट्स और फैमिली आर्ग्यूमेंट्स हो, हस्बैंड वाइफ में इश्यूज हो. आई थिंक यू हैव नाइसली कवर्ड इट almost all the areas and all wo. So I mean I'm immensely grateful for sharing your knowledge and wisdom with us, with our community. I am sure कि कुछ ना कुछ आप इससे इस conversation से लेकर जाएंगे. And like for better guidance, I would definitely suggest, please, this is the right person, and you'll find her on social media as well. Yes, but दिल से thank you so very much. I know it's a vast topic and we can cover so much, but due to the constraint, we'll keep it nice and crisp. Towards the end of the episode, we just make it nice and light and musical, and हम अपना segment close करते हैं with song या कोई भी एक ऐसा गाना जो आप emotion के साथ connect कर सकते हैं, because I believe music is the only language that everybody understands and it has no barriers to it. Right. So I have 3 emotions for you. उस इमोशन के साथ आपको कौन सा गाना याद आता है या कौन सा गाना? मैं सिर्फ गाना बोलूंगी, आप गाओगे. I have a very bad throat. Same here. अपने को सिर्फ जानना है कि आपको कौन सा गाना पसंद है, गाओ मत आप. आपको कौन सा गाना आप एसोसिएट करते हो, बस आप वो देखो. Okay, that's First emotion is happiness. जीत जाएंगे हम, अरे वाह. तुम अगर साथ हो. So if my children are along with me, I think I can fight any battle. Nice. Sadness. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर अपने हाँ. Nice. Yes, Very my nice. grandfather's favorite, and I used to always listen with him. Yes. Good song. Last emotion is love. Love. I can think of Senorita song. Nice and peppy. Yes. Of course. Yes. Very nice. Yeah. जीवन में 2 पल जो मिल जाए खुशी की, वो कम है क्या? वही मिल जाए. जी. Lovely. Thank you so much, Dr. Alifia. Thank you for your time. Thank you for your wisdom. Thank you for sharing all your nuggets. I mean, of course, आपके पास plethora of information है, plethora of wisdom है, and the kind of work you are doing, the kind of mission that you are accomplishing in your life to bring that small joy, smile, happiness in everybody's life, you are doing a great service to humankind. Thank you so much. So thank you so much, and it was an absolute pleasure to have you. Thank you.
Thank you so much, Ellen. Thank you, Ji. God bless. Thank you. So this was the end of our today's episode. और अगले episode के लिए please come back. We are going to come with another personality here, and whatever you like or dislike or maybe randomly appreciate about us, do put it on comment section, and we will see you next week. Bye bye. Take care. Keep glowing and keep growing. Thank you.